بٹ رہی ہیں، اس کا فائنینشیل سیکٹر اس کو پریشان کر رہا ہے. ہماری حکومتوں کی پرائرٹیز ہمیں خود پریشان کر رہی ہیں کہ پرائرٹی کیا ہونی چاہیے اور ملک میں ہو کیا رہا ہے. یہ الگ ایک پریشانی ہے جس کا یہاں ذکر یوں بیکار ہے کہ it is not a political forum, but keep in mind you are all politicians because politics affect you. So therefore have a political opinion. A neutral political opinion in this time, at this time of your country's destiny is bad. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ گھر کشتی میں پانی بھر رہا اور آپ کہیں جی میں نے تو ٹکٹ فلانی جگہ کے لیے لیا ہوا تھا، میں تو وہی کام کروں گا، کشتی سالی ڈوب جائے، سوری ہے نا، کشتی ڈوب جائے، آپ یہ کہیں کہ نہیں یہاں میں نے تو یہی کام کرنا ہے. دیٹ ایٹیٹیوڈ ناؤ جیسے یہاں خدا نہ خواستہ ایسی جگہ پر آگ لگ جائے اور کچھ لوگ صرف یہ کہیں کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو یہاں کانفرنس اٹینڈ کرنے آئے تھے، ہمارے ٹیلی فون بھی رکھ لیے گئے ہیں تو ہمیں ٹیلی فون واپس کرو، ہم جائیں یہاں سے. تو لہٰذا میں اس طرف سیاسی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں سیاست سے ادھر ہی رہوں تو اچھا ہے کیونکہ آپ لوگ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں. تو میرا بڑی امیدیں ہیں ان دونوں سیکٹرز کا. میں نے آپ سے ذکر کیا ان دونوں سیکٹرز کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یوتھ کو ایجوکیشن پروموٹ کرنا اور یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ جیسے ایلیٹ پر ہمارا بھروسہ ہے. دیکھیے آپ نہیں کریں گے، ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اپنے سے زیادہ. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے اپنے سے زیادہ؟ کیونکہ اللہ نے آپ کی انکمز میں ان غریبوں کا بھی حصہ ڈال دیا ہے جو ان کو کچھ نہیں مل رہا. تو لہٰذا آپ کی ذمہ داری، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ خیرات کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں علم کی خیرات کریں. انوالو پیپل. A country which can lift its own people, the poor, the deprived, جو persons with disabilities ہیں، جو ملک یہ اٹھا لے گا. اس وقت دنیا کے اندر ترقی دماغ سے ہوگی، نیچرل ریسورسز سے نہیں ہوگی. اور دماغ کی ترقی کا بہترین فورم آج آپ نے آرگنائز کیا ہے، تو وش یو گڈ لک. مگر بڑا کام کی ضرورت ہے، بڑی تکالیف ہے ہم کو، مگر ان تکالیف کے لیے we don't need an Einstein to solve our problems. We don't need foreign aid to have an intellectual change among ourselves. These are common sense thinkings. جو پاکستان جہاں سے تھا common sense thinkings چھوڑ کر جیب کے اوپر کرپشن کر کے نان میرٹ کو پروموٹ کر کر سلو ڈیسیجن میکنگ کر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو آپ اگر کسی غریب آدمی سے بھی پوچھ لیں، سڑک پر ان پڑھ سے پوچھیں گے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس ملک کی خامیاں کیا ہیں. یہاں پر سوچ کے اعتبار سے وی کین ہیو ٹریمینڈس نمبر آف تھنک ٹینکس کنٹریبیوٹنگ کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کرنے والے لوگ کم ہیں. میں امید کرتا ہوں آپ کے ساتھ اس تقریر کو اختتام پر آپ کے ساتھ امید ہے. میرا فوکس ٹوٹلی یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو فگرز دوں اور یہ کروں اور وہ کروں. میری امید ہی آپ لوگوں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ امانتیں دی ہیں. سو تھینک یو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، گڈ لک ٹو یو. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی آئی ٹی سٹارٹ اپ سے متعلق تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ خواتین کو کاروبار میں یکساں مواقع فراہم کرنا ہوں گے. اسلام میں خواتین کے دنیا بھر کے اندر بچوں کی مدد کر سکیں تو بہت سارے کام ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے ہو سکتے ہیں. آئی ٹی نے وہ راستہ کھول دیا کہ گھر کے باہر نہیں جاؤ، اگر بچے ہیں گھر میں تو گھر کے باہر نہیں جاؤ. تو اس کے اندر بھی پرسن ٹو پرسن پیمنٹ یہ بہت ضروری ہے. یہ ابھی تک اس طرح سے کرسٹلائز نہیں ہوا. یعنی میں جانتا ہوں فن ٹیک کے اعتبار سے کہ گورنمنٹ ٹو بزنسز، بزنسز ٹو گورنمنٹ، یہ پیمنٹ سسٹم شروع ہو گیا، بزنسز ٹو بزنسز بھی ہو گیا، بٹ پرسن ٹو پرسن ذرا سا سلو ہے. اور بے انتہا دس از اے گولڈ مائن فار فائنینشیل انویسٹرز. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے ابھی باہر سے، انہوں نے کہا جی میں پاکستان کے جو بھی حالات ہوں میں اس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اتنا پوٹینشیل ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کے اندر، 220 ملین کے اندر 18 کروڑ کے پاس تقریباً سیل فونز ہیں. اور یہ انٹیپڈ گولڈن مارکیٹ ہے کہ میں پرسن ٹو پرسن پیمنٹس کو اسٹیٹ بینک نے کیا بھی ہے. پچھلے دنوں بینکرز کی میٹنگ تھی تو بڑی وہ اپنی تعریف کر رہے تھے. تو میں نے ان کو ایک اور بات بتائی، دیکھو سوچو پروگریس اس طرح سے نہیں ہوتی کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ دنیا یہاں سے یہاں پہنچ گئی اور آپ یہاں سے یہاں پہنچے. اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو کیچ اپ ترقی کرنی ہے. یہ نہیں کہ وہ اتنی تیزی سے ان کے ایکسیلریشن اور ہماری ایکسیلریشن کے اندر فرق ہو، تو تیزی سے ترقی کرنی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں نے یہاں آنے سے پہلے ایک کتاب پڑھی تھی، کتابوں کا شوق رہتا ہے مجھے. ٹیلی ویژن کا کم ہوتا جا رہا ہے.
किताबों का शौक रहता है, टेलीविजन में मिस इंटरप्रेशन इतना होता है पता नहीं क्या, तो किताबों का शौक रहता है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, क्वाओ ली की है, सुपर पावर्स ऑफ एआई चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अंदर ये था कि जो आर्म्स या पैसे मांगता है गरीब आदमी सड़क पर खड़ा होकर, तो उसने अपना क्यूआर कोड रखा हुआ है कि पेमेंट करो। ये 4 साल पहले की मैंने किताब पढ़ी थी। अच्छा जी, अभी रिसेंट इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपने पढ़ा हो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेमेंट्स हो रहा है, उसमें ट्रिमेंडस चेंज हैज हैपेंड। उसमें एक तस्वीर है कि औरत सब्जी बेच रही है और उसने अपने ठेले पर क्यूआर कोड रखा हुआ है कि पेमेंट इससे करो। तो अगर पाकिस्तान आहिस्ता चलेगा तो नतीजा ये होगा कि देखो वैक्यूम नहीं रहता, यानी जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो दुनिया में बिकती हैं, और अगर आप उस सिस्टम को, उस लॉजिस्टिक्स को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें इस अंदाज से बिकेंगी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये हर जगह पर हमें ये बात करनी चाहिए कि औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से जो आज की महफिल, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि ये मेरा और मेरी बीवी का भी पेट टॉपिक है। और मैं पिछले दिनों मेटा ने, फेसबुक ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अंदर उन्होंने 5000 औरतों को ट्रेन किया था, मगर मुझसे अगले साल के लिए वादा किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आईटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्वांटम एतबार से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी जब मैं यूनिवर्सिटीज़ को कहता हूँ कि अपने प्रोग्राम बनाओ, बढ़ाओ, तो वो कहते हैं जी अगर हमारे 600 एडमिशन हम लेते हैं, 600 और लेंगे तो हमें 1 अरब रुपया और चाहिए। मगर आईटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन बेस्ड हों वो इतने ज़रूरी हैं कि आज मैं आपके पास आने से पहले हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से मीटिंग कर रहे थे, जिसमें बड़ी प्रोग्रेस हुई है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लेडी टेकिंग ट्रिमेंडस इंटरेस्ट। उसमें हमें बड़ी प्रोग्रेस हुई, और मैं आप लोगों के इदारों से ये कह रहा हूँ कि जहाँ आप एक डिप्राइव सेक्टर की बात करते हैं तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से भी फोकस करें। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 2 से 5% नहीं, नंबर 1 औरतों की बात की एम्प्लॉयमेंट को मैं ये कहूँ आपसे कि जब वो चैम्बर्स वाले लोग आते थे तो मैंने उनसे जब ये कहना शुरू किया तो फिर वो जब से मुझसे अवार्ड्स दिलवाते थे तो उसमें भी कोई औरत नहीं होती थी। तो मैंने अब एक कंपल्शन शुरू किया इस साल, मैंने कहा 10% अगर अवार्ड्स औरतों को नहीं मिलेंगे तो मैं वो फंक्शन ही नहीं करूँगा। अच्छा, मगर 10% का मतलब ये नहीं कि 10% पर रुक जाए, 10% is the minimum criterion. This is being implemented here. कि हम नहीं उसको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, वो फंक्शन ही हम नहीं करेंगे। तो कभी कभी यू फोर्स चेंजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने, आप लोग तो हर साल इस चेंज को इम्प्लीमेंट करें अपने इदारों के अंदर कि अगर आज 12% थी ख़वातीन तो अगले साल 15 हो। वट एवर इज़ नॉट प्रैक्टिकल वो आप करें, क्योंकि जब ये स्टेप आप उठाते हैं ना तो कभी कभी आप कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब मुल्क पीछे रह गया इसमें तो इम्प्रैक्टिकल काम करने पड़ेंगे आपको, अपने पास से पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा, अपने पास से कोई सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, मगर इसको इंश्योर करें। एक दूसरा, ये पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 2 से 5% डिपेंडिंग ऑन वे यू आर के पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आप जॉब्स देंगे। तीसरा ये कि उसमें भी अभी एक कसर है कि हम ये समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो पीडब्ल्यूडीज़ को हम दे देंगे। ऐसा नहीं होता। पीडब्ल्यूडीज़ के लिए कभी कभी आपको जॉब्स टेलर करने पड़ेंगे, और आज हमने जो मीटिंग की थी उसमें टेफ्टा और नैफटेक और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, उन सब को इकट्ठा कर क्योंकि मुझे खुद एहसास हुआ, आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब की नज़र में आपके ख़ानदान में या करीब में कोई डिसेबल्ड बच्चा या बड़ा होगा। अच्छा, और जब है तो मुझे अपने ख़ानदान में 2 मैं काम कर रहा हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पर, मैं और मेरी बीवी। तो पिछले दिनों शादी की किसी तकरीब के अंदर वो बच्चा ज़्यादा नज़र आया, तो मुझे ख्याल हुआ इसको पूछूं तो सही कि कर क्या रहे हो तुम। तो वो व्हील चेयर पर था, उसने कहा कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा। मुझे लगा ये कि वो फिक्स नहीं हो पा रहा था कि क्या करेगा। पढ़ा लिखा पढ़ रहा था, उसने कहा जी मैं आईटी में ये प्रोग्राम कर लूँगा और वो प्रोग्राम कर लूँगा। बट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परेशान था कि इसको कहाँ भेजे, कैरियर काउंसलिंग कौन करेगा, कौन उंगली पकड़कर उसको आगे ले जाएगा। तो टुडे एंड इन द लास्ट 2 वीक्स वी बीन डेलिबरेटिंग ऑन दैट कि कैरियर काउंसलिंग, देखिए कैरियर काउंसलिंग
आम सोसाइटी में भी सही नहीं हो रही। और मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जो सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस की, वो काफ़ी हैं जितना हमें ज़रूरत है, मगर 25,000 बच्चे बाहर गए हुए हैं पाकिस्तान के, वो कमर्शियल मेडिकल एजुकेशन इन नंबर ऑफ कंट्रीज, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान, वहाँ में। अच्छा, उनकी करियर काउंसलिंग नहीं हुई, मगर एक ट्रेडिशनल कैफियत है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से जनाब नौकरी अच्छी मिल जाएगी, लिहाजा फिर वो आकर कहेंगे कि जी हमें रिकग्नाइज करो, हमें इम्तिहान पास करवाओ, हमें नौकरी दिलवाओ। तो कैरियर काउंसलिंग उस लेवल पर भी कसर है, मगर PWDs के हवाले से कैरियर काउंसलिंग, औरतों के लिए कैरियर काउंसलिंग, औरतों की स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, और आपको ये भी बता दूं, आपको ताजुब होगा जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और फिर थ्योरी की बात करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 2 साल से मैं ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से सुन रहा हूँ, ये 3 साल से, कि गवर्नमेंट ने जो लोन्स मुख्तस किए औरतों के लिए, उसमें 5% औरतें भी नहीं आई। अब कैन यू इमेजिन? आपको पता था? अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? मतलब एवरी नॉलेज हैज टू बी फेड। बहुत सारी औरतों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साल में वो वुमेन्स डे होता है तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि द टर्न आउट इज गुड, मगर ऑर्गेनाइजेशंस अगर इसको गाइड नहीं करेंगे, एक्चुअली दिस इज ट्रू, नॉट इवन 5%, एंड यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम द बैंक्स, नॉट इवन 5%। अच्छा, कुछ बैंक्स ने तो ये कहा कि भाई आए तो अप्लाई तो करे, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स को हायर किया हुआ है कि फीजिबिलिटी वो बना देंगे। इवन देन मैंने MNAs और MPS खवातीन को कहा, जितनी खवातीन यहां बैठी हैं, आप एलिट हैं, आपका फर्ज बनता है कि बजाय इसके कि डिमांड मोर, यू मस्ट डिमांड मोर, बट जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर फैसिलिटेट कौन करेगा फिर? तो लिहाजा दैट वाज अ वैक्यूम कि यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट मीन्स कम्युनिकेशन हैज बीन पुअर, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये प्रेसिडेंट 50 तकरीरें तो की होंगी उसने यही फिगर्स देकर कि 5% भी औरतें नहीं आई, मगर इतनी चेंज नहीं हुई। तो देयरफॉर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे फेसबुक का मैंने आपसे जिक्र किया कि उनसे ये तय हुआ था कि अगले साल वो बढ़ाएंगे ताकि अपॉर्चुनिटीज दें औरतों को कि काम करें। ये जो औरत घर पर बैठ काम कर बेच सकती है, दिस इज वैल्यू एडिशन, दिस इज नॉट रन ऑफ द मिल मेकिंग ऑफ क्लॉथ और समथिंग। वो कपड़े को एनहांस करेगी, IT स्किल्स को एनहांस करेगी, टीचिंग करेगी, बहुत सारी स्किल्स हैं जो एनहांस्ड हैं द वैल्यू एडिशन के साथ, वो उसकी कम्युनिकेशन। तो देयर इज़ जो खातून जिनको अभी हमने दिया रिकग्निशन किया, तो आप सब के लिए ये जो IT है, IT इज वो रोड है जिसके अंदर सेलर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट और अ रियल प्रोडक्ट को बायर के साथ लिंक करने के लिए, इससे बेहतर चीज़ दुनिया में न कभी इजाज़ हुई, और इससे ये मामला बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक दूसरी बात का आपसे जिक्र करूं, आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी बात की, और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर STZs, ये जो जोन बनाने की कैफियत है, ये अमेरिका से शुरू हुई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जोन बनाए, चाइना ने इसको और प्रॉस्पेरिटी दी कि जोन बनाकर, यानी मुल्क के अंदर जो भी कवानीन हो, जोन्स को एक इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से बना दिया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या टेक्नोलॉजी जोन, कि तुम आओ, तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें ये आसानियाँ मिलेंगी। काश के सारा मुल्क वैसा हो जाए, मगर ये कि जो मुल्क अपने सारे आवाम के लिए नहीं कर पाते, तो कम से कम कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ में ये फैसिलिटी देते हैं फॉर बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड गेटिंग इन्वेस्टमेंट इनटू अ कंट्री। तो लिहाजा वो जोन्स के एतबार से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पाकिस्तान के अंदर इसको प्रमोट कर रहे हैं। मगर एक और चीज़ आपसे जिक्र करूं कि आज ही आई एड्रेस्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर एफिशिएंसीज और डिफेंसेस, और उसके कुछ फिगर्स मैं आपसे जिक्र करूं कि 2030 तक 2000 अरब 200 बिलियन डिवाइसेस होंगे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर साइबर में 2 चीज़ें हुई, एक तो डिवाइसेस की सिक्योरिटी हुई, क्योंकि ये आपके पावर सेंटर्स, आपके बैंक्स और आपके यूटिलिटी और सब बहुत सारी चीज़ें, आपके सेंट्रीफ्यूजेस, ईरान के अंदर वो गड़बड़ भी हुआ था, ईरान के अंदर वो अटैक भी हुआ था जिसके अंदर एक जनरल को भी मारा गया। तो वो हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने वाला भी डिफेंस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी। दूसरे इंफॉर्मेशन के एतबार से तो इस वक्त दुनिया में 34 लाख 3.4 मिलियन जॉब्स हैं जो फुलफिल नहीं है।
3.4 मिलियन जॉब्स। कौन भरेगा इसको? वो ऐसा मुल्क जिसके अंदर यूथ बल्ज हो वो भर सकता है, ऐसा मुल्क जिसके अंदर औरतें घर पर हैं, बहुत एडवाइस कर सकती हैं, वो भर सकती हैं। मगर हमारा जो एक प्रोसेस है एजुकेशन का वो ऑनलाइन कम है और फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर ज़्यादा है, तो हमारा साइबर वो अपना यूथ बल्ज ज़रूर है और औरतों का बल्ज भी मौजूद है जो अनरिकग्नाइज्ड है। ये सब औरतें अगर हमने काम पर लगा दिया इनको, ऑलरेडी तालीम याफ्ता औरतें काम में नहीं है, और अगर काम पर हमने लगा दिया तो पाकिस्तान का जो सबसे तेज़ रूट है टू डेवलपमेंट वो औरत के थ्रू होगा, और सबसे ज़्यादा तेज़ रूट ऑफ डेवलपमेंट वो यूथ के साथ होगा कि हम उसको तालीम प्रोवाइड करें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं, उसका फाइनेंशियल सेक्टर उसको परेशान कर रहा है, हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ हमें ख़ुद परेशान कर रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और मुल्क में हो क्या रहा है। ये अलग एक परेशानी है जिसका यहाँ जिक्र यूँ बेकार है कि इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फोरम, बट कीप इन माइंड यू आर ऑल पॉलिटिशियंस बिकॉज पॉलिटिक्स अफेक्ट यू, है ना। सो देयरफॉर हैव अ पॉलिटिकल ओपिनियन, अ न्यूट्रल पॉलिटिकल ओपिनियन इन दिस टाइम, एट दिस टाइम ऑफ योर कंट्रीज डेस्टिनी इज़ बैड। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर किश्ती में पानी भर रहा हो और आप कहें जी मैंने तो टिकट फलानी जगह के लिए लिया हुआ था, मैं तो वही काम करूँगा, किश्ती साली डूब जाए, सॉरी इसको है ना, किश्ती डूब जाए, आप ये कहें कि नहीं यहाँ मैंने तो यही काम करना है। दैट एटीट्यूड नाउ जैसे यहाँ खुदा ना खासा ऐसी जगह पर आग लग जाए और कुछ लोग सिर्फ ये कहें कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे, हमारे टेलीफोन भी रख लिए गए हैं, तो हमें टेलीफोन वापस करो, हम जाएँ यहाँ से तो लिहाजा मैं उस तरफ सियासी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सियासत से इधर ही रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग तो टेक्नोलॉजी के साथ हैं। तो मेरा बड़ी उम्मीदें हैं इन दोनों सेक्टर्स का, मैंने आपसे जिक्र किया। इन दोनों सेक्टर्स के अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ को एजुकेशन प्रमोट करना और ये सारे काम करने के लिए आप जैसे इलीट पर हमारा भरोसा है। देखिए आप नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे अपने से ज़्यादा। मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे अपने से ज़्यादा? क्योंकि अल्लाह ने आपकी इनकम्स में उन गरीबों का भी हिस्सा डाल दिया है जो उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो लिहाजा आपकी जिम्मेदारी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि खैरात करें, मैं आपसे कह रहा हूं इल्म की खैरात करें, इन्वॉल्व पीपल, अ कंट्री विच कैन लिफ्ट इट्स ओन पीपल, द पुअर, द डिप्राइव्ड, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो मुल्क ये उठा लेगा। इस वक्त दुनिया के अंदर तरक्की दिमाग से होगी, नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं होगी, और दिमाग की तरक्की का बेहतरीन फोरम आज आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो विश यू गुड लक। मगर बड़ा काम की ज़रूरत है, बड़ी तकालीफ है हमको, मगर उन तकालीफ के लिए वी डोंट नीड एन आइंस्टाइन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, वी डोंट नीड फॉरेन एड टू हैव एन इंटेलेक्चुअल चेंज अमंग आवरसेल्व्स। दीज आर कॉमन सेंस थिंकिंग्स। जो पाकिस्तान जहाँ से था, कॉमन सेंस थिंकिंग्स छोड़कर जेब के ऊपर करप्शन करके, नॉन मेरिट को प्रमोट कर कर, स्लो डिसीजन मेकिंग कर कर हम यहाँ तक पहुँचे। तो आप अगर किसी गरीब आदमी से भी पूछ लें, सड़क पर अनपढ़ से पूछेंगे, वो आपको बता देगा कि इस मुल्क की खामियां क्या हैं। यहाँ पर सोच के एतबार से वी कैन हैव ट्रिमेंडस नंबर ऑफ थिंक टैंक्स कंट्रीब्यूटिंग कि भाई ये करना है, ये करना है, करने वाले लोग कम हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ इस तकरीर को इख्तिताम पर आपके साथ उम्मीद है, मेरा फोकस टोटली ये नहीं था कि मैं आपको फिगर्स दूं और ये करूं और वो करूं, मेरी उम्मीद ही आप लोगों से है जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा अमानतें दी हैं। सो थैंक यू लेडीज़ एंड जेंटलमैन, गुड लक टू यू। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी IT स्टार्टअप से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खवातीन को कारोबार में यकसा मौके फराहम करना होंगे। इस्लाम में खवातीन के दुनिया भर के अंदर बच्चों की मदद कर सकें, तो बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे बैठे हो सकते हैं। IT ने वो रास्ता खोल दिया कि घर के बाहर नहीं जाओ, अगर बच्चे हैं घर में तो घर के बाहर नहीं जाओ। तो उसके अंदर भी पर्सन टू पर्सन पेमेंट ये बहुत ज़रूरी है। ये अभी तक इस तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। यानी मैं जानता हूँ फिनटेक के एतबार से कि गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, बिजनेसेस टू गवर्नमेंट, ये पेमेंट सिस्टम शुरू हो गया, बिजनेसेस टू बिजनेसेस भी हो गया, बट पर्सन टू पर्सन ज़रा सा स्लो है और बेइंतहा। दिस इज़ अ गोल्ड माइन फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स। मेरे पास एक साहब आए थे अभी बाहर से, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के जो भी हालात हों मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इतना पोटेंशियल है कि 22 करोड़ लोगों के अंदर, 220 मिलियन के अंदर 18 करोड़ के पास तकरीबन सेल फोन्स हैं।
और ये अनटैप्ड गोल्डन मार्केट है कि मैं पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स को स्टेट बैंक ने किया भी है। पिछले दिनों बैंकर्स की मीटिंग थी तो बड़ी वो अपनी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने उनको एक और बात बताई, देखो सोचो प्रोग्रेस इस तरह से नहीं होती कि दुनिया तेजी से जा रही है और आप इस बात पे खुश हो कि दुनिया यहाँ से यहाँ पहुँच गई और आप यहाँ से यहाँ पहुँचे। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो कैचअप तरक्की करनी है, ये नहीं कि वो उतनी तेजी से उनके एक्सेलरेशन और हमारी एक्सेलरेशन के अंदर फर्क हो, तो तेजी से तरक्की करनी है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने यहाँ आने से पहले एक किताब पढ़ी थी, किताबों का शौक रहता है मुझे, टेलीविजन का कम होता जा रहा है, किताबों का शौक रहता है, टेलीविजन में मिस इंटरप्रेशन इतना होता है पता नहीं क्या, तो किताबों का शौक रहता है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, क्वाओ फू ली की है, सुपर पावर्स ऑफ एआई चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अंदर ये था कि जो आर्म्स या पैसे मांगता है गरीब आदमी सड़क पर खड़ा होकर, तो उसने अपना क्यूआर कोड रखा हुआ है कि पेमेंट करो। ये 4 साल पहले की मैंने किताब पढ़ी थी। अच्छा जी, अभी रिसेंट इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपने पढ़ा हो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेमेंट्स हो रहा है, उसमें ट्रिमेंडस चेंजेस हैपन। उसमें एक तस्वीर है कि औरत सब्जी बेच रही है और उसने अपने ठेले पर क्यूआर कोड रखा हुआ है कि पेमेंट इससे करो। तो अगर पाकिस्तान आहिस्ता चलेगा तो नतीजा ये होगा कि देखो वैक्यूम नहीं रहता, यानी जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो दुनिया में बिकती हैं, और अगर आप उस सिस्टम को, उस लॉजिस्टिक्स को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें इस अंदाज से बिकेंगी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये हर जगह पर हमें ये बात करनी चाहिए कि औरतों की एम्पावरमेंट के हवाले से जो आज की महफिल, और मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इसके ऊपर फोकस किया, क्योंकि ये मेरा और मेरी बीवी का भी पेट टॉपिक है। और मैं पिछले दिनों मेटा ने, फेसबुक ने एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसके अंदर उन्होंने 5000 औरतों को ट्रेन किया था, मगर मुझसे अगले साल के लिए वादा किया था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आईटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्वांटम एतबार से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी जब मैं यूनिवर्सिटीज़ को कहता हूँ कि अपने प्रोग्राम बनाओ, बढ़ाओ, तो वो कहते हैं जी अगर हमारे 600 एडमिशन हम लेते हैं, 600 और लेंगे तो हमें 1 अरब रुपया और चाहिए। मगर आईटी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ऑनलाइन बेस्ड हों वो इतने ज़रूरी हैं कि आज मैं आपके पास आने से पहले हम पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से मीटिंग कर रहे थे, जिसमें बड़ी प्रोग्रेस हुई है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट लेडी टेकिंग ट्रिमेंडस इंटरेस्ट। उसमें हमें बड़ी प्रोग्रेस हुई, और मैं आप लोगों के इदारों से ये कह रहा हूँ कि जहाँ आप एक डिप्राइव सेक्टर की बात करते हैं तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के हवाले से भी फोकस करें। पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 2 से 5% नहीं, नंबर 1 औरतों की बात के एम्प्लॉयमेंट को मैं ये कहूँ आपसे कि जब वो चैम्बर्स वाले लोग आते थे तो मैंने उनसे जब ये कहना शुरू किया तो वो जब से मुझसे अवार्ड्स दिलवाते थे तो उसमें भी कोई औरत नहीं होती थी। तो मैंने अब एक कंपल्शन शुरू किया इस साल, मैंने कहा 10% अगर अवार्ड्स औरतों को नहीं मिलेंगे तो मैं वो फंक्शन ही नहीं करूँगा। अच्छा, मगर 10% का मतलब ये नहीं कि 10% पर रुक जाए, 10% इज द मिनिमम क्राइटेरियन। दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड हियर कि हम नहीं उसको रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे, वो फंक्शन ही हम नहीं करेंगे। तो कभी कभी यू फोर्स चेंजिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत ने, आप लोग तो हर साल इस चेंज को इम्प्लीमेंट करें अपने इदारों के अंदर कि अगर आज 12% थी ख़वातीन तो अगले साल 15 हो। वट एवर इज़ नॉट प्रैक्टिकल वो आप करें, क्योंकि जब ये स्टेप आप उठाते हैं ना तो कभी कभी आप कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जब मुल्क पीछे रह गया इसमें तो इम्प्रैक्टिकल काम करने पड़ेंगे आपको, अपने पास से पैसा ज़्यादा डालना पड़ेगा, अपने पास से कोई सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, मगर इसको इंश्योर करें। एक दूसरा, ये पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि 2 से 5% डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को आप जॉब्स देंगे। तीसरा ये कि उसमें भी अभी एक कसर है कि हम ये समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग जॉब्स हैं वो पीडब्ल्यूडीज़ को हम दे देंगे। ऐसा नहीं होता। पीडब्ल्यूडीज़ के लिए कभी कभी आपको जॉब्स टेलर करने पड़ेंगे, और आज हमने जो मीटिंग की थी उसमें टेफ्टा और नैफटेक और नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, उन सब को इकट्ठा कर क्योंकि मुझे खुद एहसास हुआ, आप सब वाकिफ़ हैं, आप सब की नज़र में आपके ख़ानदान में या करीब में कोई डिसेबल्ड बच्चा या बड़ा होगा।
अच्छा, और जब है तो मुझे अपने ख़ानदान में मैं काम कर रहा हूँ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पर, मैं और मेरी बीवी। तो पिछले दिनों शादी की किसी तकरीब के अंदर वो बच्चा ज़्यादा नज़र आया, तो मुझे ख्याल हुआ इसको पूछूं तो सही कि कर क्या रहे हो तुम। तो वो व्हील चेयर पर था, उसने कहा कि जी मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर लूँगा। मुझे लगा ये कि वो फिक्स नहीं हो पा रहा था कि क्या करेगा। पढ़ा लिखा पढ़ रहा था, उसने कहा जी मैं IT में ये प्रोग्राम कर लूँगा और वो प्रोग्राम कर लूँगा। बट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान परेशान था कि इसको कहाँ भेजे, कैरियर काउंसलिंग कौन करेगा, कौन उंगली पकड़कर उसको आगे ले जाएगा। तो टुडे एंड इन द लास्ट 2 weeks वी बीन डिलिबरेटिंग ऑन दैट कि कैरियर काउंसलिंग, देखिए कैरियर काउंसलिंग आम सोसाइटी में भी सही नहीं हो रही, और मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान में जो सीटें हैं मेडिकल कॉलेजेस की, वो काफ़ी हैं जितना हमें ज़रूरत है, मगर 25,000 बच्चे बाहर गए हुए हैं पाकिस्तान के, वो कमर्शियल मेडिकल एजुकेशन इन नंबर ऑफ कंट्रीज, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान, वहाँ में। अच्छा, उनकी कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई, मगर एक ट्रेडिशनल कैफियत है कि डॉक्टर इंजीनियर बनने से जनाब नौकरी अच्छी मिल जाएगी, लिहाजा फिर वो आकर कहेंगे कि जी हमें रिकग्नाइज करो, हमें इम्तहान पास करवाओ, हमें नौकरी दिलवाओ। तो कैरियर काउंसलिंग उस लेवल पर भी कसर है, मगर PWDs के हवाले से कैरियर काउंसलिंग, औरतों के लिए कैरियर काउंसलिंग, औरतों की स्किल डेवलपमेंट। अच्छा, और आपको ये भी बता दूं, आपको ताज्जुब होगा जब आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें और फिर थ्योरी की बात करें। आपको ये मालूम होना चाहिए कि पिछले 2 साल से मैं ये बात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर से सुन रहा हूँ, ये 3 साल से, कि गवर्नमेंट ने जो लोन्स मुख्तस किए औरतों के लिए, उसमें 5% औरतें भी नहीं आई। अब कैन यू इमेजिन? आपको पता था? अगर नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था? मतलब एवरी नॉलेज हैज टू बी फेड। बहुत सारी औरतों की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, साल में वो वुमेन्स डे होता है तो आई एम इम्प्रेस्ड बाय द फैक्ट कि द टर्नआउट इज गुड, मगर ऑर्गेनाइजेशंस अगर इसको गाइड नहीं करें, एक्चुअली दिस इज ट्रू, नॉट इवन 5%, एंड यू कैन कंफर्म इट फ्रॉम द बैंक्स, नॉट इवन 5%। अच्छा, कुछ बैंक्स ने तो ये कहा कि भाई आए तो अप्लाई तो करे, हमने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स को हायर किया हुआ है कि फीजिबिलिटी वो बना देंगे। इवन देन मैंने MNAs और MPs खवातीन को कहा, जितनी खवातीन यहाँ बैठी हैं आप एलिट हैं, आपका फर्ज बनता है कि बजाय इसके कि डिमांड मोर, यू मस्ट डिमांड मोर, बट जो एग्जिस्ट करता है उसके अंदर फैसिलिटेट कौन करेगा फिर? तो लिहाजा दैट वाज अ वैक्यूम कि यू शुड अंडरस्टैंड कि दैट मीन्स कम्युनिकेशन हैज बीन पुअर, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये प्रेसिडेंट 50 तकरीरें तो की होंगी उसने यही फिगर्स देकर कि 5% भी औरतें नहीं आई, मगर इतनी चेंज नहीं हुई। तो देयरफॉर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे फेसबुक का मैंने आपसे जिक्र किया कि उनसे ये तय हुआ था कि अगले साल वो बढ़ाएंगे ताकि अपॉर्चुनिटीज दें औरतों को कि काम करें। ये जो औरत घर पर बैठ काम कर बेच सकती है, दिस इज वैल्यू एडिशन, दिस इज नॉट रन ऑफ द मिल मेकिंग ऑफ क्लॉथ और समथिंग। वो कपड़े को एनहांस करेगी, IT स्किल्स को एनहांस करेगी, टीचिंग करेगी, बहुत सारी स्किल्स हैं जो एनहांस्ड हैं द वैल्यू एडिशन के साथ, वो उसकी कम्युनिकेशन। तो देयर इज़ जो खातून जिनको अभी हमने दिया रिकग्निशन किया, तो आप सब के लिए ये जो IT है, IT इज वो रोड है जिसके अंदर सेलर ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट और अ रियल प्रोडक्ट को बायर के साथ लिंक करने के लिए इससे बेहतर चीज़ दुनिया में न कभी इजाज़ हुई, और इससे ये मामला बढ़ता रहेगा। अच्छा, एक दूसरी बात का आपसे जिक्र करूं, आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स की भी बात की, और माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर STZs, ये जो जोन बनाने की कैफियत है ये अमेरिका से शुरू हुई। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के जोन बनाए, चाइना ने इसको और प्रॉस्पेरिटी दी कि जोन बनाकर, यानी मुल्क के अंदर जो भी कवानीन हो, जोन्स को एक इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह से बना दिया जाता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन या टेक्नोलॉजी जोन, कि तुम आओ, तुम्हें टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें ये आसानियाँ मिलेंगी। काश के सारा मुल्क वैसा हो जाए, मगर ये कि जो मुल्क अपने सारे आवाम के लिए नहीं कर पाते, तो कम से कम कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ में ये फैसिलिटी देते हैं फॉर बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड गेटिंग इन्वेस्टमेंट इनटू अ कंट्री। तो लिहाजा वो जोन्स के एतबार से स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स पाकिस्तान के अंदर इसको प्रमोट कर रहे हैं। मगर एक और चीज़ आपसे जिक्र करूं कि आज ही आई एड्रेस्ड अ कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर टेक्नोलॉजी और साइबर एफिशिएंसीज और डिफेंसेस, और उसके कुछ फिगर्स मैं आपसे जिक्र करूं कि 2030 तक 2000 अरब
100 बिलियन डिवाइसेस होंगे जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ लिंक्ड हैं। अच्छा, तो इसके ऊपर साइबर में दो चीज़ें हुई। एक तो डिवाइसेस की सिक्योरिटी हुई, क्योंकि ये आपके पावर सेंटर्स, आपके बैंक्स और आपके यूटिलिटी और सब बहुत सारी चीज़ें, आपके सेंट्रीफ्यूजेस, ईरान के अंदर वो गड़बड़ भी हुआ था, ईरान के अंदर वो अटैक भी हुआ था जिसके अंदर एक जनरल को भी मारा गया। तो वो हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करने वाला भी डिफेंस होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी। दूसरे इंफॉर्मेशन के एतबार से तो इस वक्त दुनिया में 34 लाख 3.4 मिलियन जॉब्स हैं जो फुलफिल नहीं है। 3.4 मिलियन जॉब्स कौन भरेगा इसको? वो ऐसा मुल्क जिसके अंदर यूथ बल्ज हो वो भर सकता है, ऐसा मुल्क जिसके अंदर औरतें घर पर हैं, बहुत एडवाइस कर सकती हैं, वो भर सकती हैं। मगर हमारा जो एक प्रोसेस है एजुकेशन का वो ऑनलाइन कम है और फिजिकल ब्रिक एंड मॉर्टर ज़्यादा है, तो हमारा साइबर वो अपना यूथ बल्ज ज़रूर है और औरतों का बल्ज भी मौजूद है जो अनरिकग्नाइज्ड है। ये सब औरतें अगर हमने काम पर लगा दिया, इनको ऑलरेडी तालीम याफ्ता औरतें काम में नहीं है, और अगर काम पर हमने लगा दिया तो पाकिस्तान का जो सबसे तेज़ रूट है टू डेवलपमेंट वो औरत के थ्रू होगा, और सबसे ज़्यादा तेज़ रूट ऑफ डेवलपमेंट वो यूथ के साथ होगा कि हम उसको तालीम प्रोवाइड करें। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान को परेशान कर रही हैं, उसका फाइनेंशियल सेक्टर उसको परेशान कर रहा है, हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ हमें ख़ुद परेशान कर रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और मुल्क में हो क्या रहा है। ये अलग एक परेशानी है जिसका यहाँ जिक्र यूँ बेकार है कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फोरम, बट कीप इन माइंड यू आर ऑल पॉलिटिशियंस बिकॉज पॉलिटिक्स अफेक्ट यू, है ना। So therefore have a political opinion. A neutral political opinion in this time, at this time of your country's destiny is bad. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर किश्ती में पानी भर रहा हो और आप कहें जी मैंने तो टिकट फलानी जगह के लिए लिया हुआ था, मैं तो वही काम करूंगा, किश्ती साली डूब जाए, सॉरी है ना, किश्ती डूब जाए, आप ये कहें कि नहीं यहाँ मैंने तो यही काम करना है। दैट एटीट्यूड नाउ जैसे यहाँ खुदा ना खास्ता ऐसी जगह पर आग लग जाए और कुछ लोग सिर्फ ये कहें कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे, हमारे टेलीफोन भी रख लिए गए हैं, तो हमें टेलीफोन वापस करो, हम जाएं यहाँ से तो लिहाजा मैं उस तरफ सियासी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सियासत से इधर ही रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग तो टेक्नोलॉजी के साथ हैं। तो मेरा बड़ी उम्मीदें हैं इन दोनों सेक्टर्स का, मैंने आपसे जिक्र किया। इन दोनों सेक्टर्स के अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ को एजुकेशन प्रमोट करना और ये सारे काम करने के लिए आप जैसे इलीट पर हमारा भरोसा है। देखिए आप नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे।